Hello students, myself Dr. Vinita Rathore, Associate Professor Zoology at SMB Government PG College, Nathadwara. In the earlier video, we have studied the general characteristics of phylum Platyhelminthes. In this video, we will discuss about classification of phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes is divided into three classes: Turbellaria, Trematoda, and Cestoda. The first class is Turbellaria. The word Turbellaria is derived from a Latin word turbella, which means a steering. The Turbellarians are mostly free-living platforms, but some of them may be ectocommensals and endocommensals, and few of them are parasitic. The body of Turbellarians is unsegmented. The body is covered with a cellular or a syncytial epidermis, usually with mucous cells, and which is usually partly ciliated. प्लैटिहेल्मिन्थीज को हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं: टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा। पहला वर्ग टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया शब्द का विकास लैटिन भाषा के टर्बेला शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टीयरिंग, निरंतर हिलना डुलना, हिलाना। टर्बिलेरिया के जो ज्यादातर जंतु हैं वे स्वतंत्र जीवी हैं। कुछ इसमें से एक्टोकमेंसल्स यानी कि बाह्य सहजीवी, कुछ अंतःसहजीवी और कुछ परजीवी हैं। सामान्यतया टर्बिलेरियंस को प्लैनेरियंस के नाम से भी पुकारा जाता है। टर्बिलेरियंस जो फ्री लिविंग एनिमल्स हैं या स्वतंत्र जीवी जीव हैं, वो पृथ्वी पर रहने वाले भी हो सकते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे मे बी मैराइन, वो समुद्री जल में रहने वाले भी हो सकते हैं, और दे मे बी फ्रेश वाटर फॉर्म यानी कि स्वच्छ जलीय जीव भी हो सकते हैं। इनका जो शरीर है अविभाजित है, खंडों में विभाजित नहीं होता है। इनकी बॉडी एक सेल्यूलर या सिंसिशियल एपिडर्मिस के द्वारा आस्तरित रहती है। Adhesive organs are abundantly present in these animals. The epidermis contains mucus-secreting cells and rod-shaped cells, which are called as rhabdites. The digestive system usually consists of mouth, pharynx, and intestine. Anus is absent in these animals. It means the alimentary canal is incomplete alimentary canal. The excretory system consists of protonephridia and the flame cells. प्लैटिहेल्मिन्थीज के जंतुओं में आसंजन हेतु एडेसिव ऑर्गन्स या आसंजन अंग उपस्थित होते हैं। इनकी जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस में म्यूकस स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं, जिनका आकार छड़ के आकार का होता है, उपस्थित होती हैं, और इन छड़ाकार म्यूकस स्त्रावण करने वाली कोशिकाओं को रैब्डाइटिस या रैब्डाइट्स कहा जाता है। पाचन तंत्र की इनके अंदर हम देखें तो इनके पाचन तंत्र में मुख, फेरिंग्स, आंत पाई जाती है, किंतु गुदा छिद्र का अभाव होता है। उत्सर्जन हेतु इनके शरीर में प्रोटोनेफ्रिडिया और ज्वाला कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। In Turbellarians, suckers are absent, but the sense organs consist of tangoreceptors and chemoreceptors. Most of them are hermaphrodite animals. The reproduction may be sexual reproduction, asexual reproduction, and they also reproduce themselves by regeneration. The life cycle is very simple and the development is usually direct. It means there is no larval stage in the life cycle of Turbellarians. टर्बिलेरिया के जीवों में क्यूशकों का अभाव होता है और इनके संवेदी अंग स्पर्शग्राही और रसायनग्राही होते हैं।
अर्थात छूने की संवेदनाओं को और जल में उपस्थित विभिन्न केमिकल्स को की संवेदनाओं को ग्रहण करने हेतु उपयुक्त होते हैं। ज्यादातर जीव उभयलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग दोनों एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं। इनमें प्रजनन लैंगिक अलैंगिक दोनों तरीके से होता है। साथ ही साथ इनमें रीजेनरेशन की भी क्षमता उपस्थित होती है। इनका जीवन चक्र सरल प्रकार का होता है और विकास के दौरान कोई लार्वल अवस्था नहीं होती है। प्रत्यक्ष विकास की प्रक्रिया इनके अंदर पाई जाती है। आर कॉन्वोल्यूटा, मैक्रोस्टोमम, माइक्रोस्टोमम, मीजोस्टोमा, प्लानेरिया और डूजोसिया, जियोप्लाना and notoplana. The second class of phylum Platyhelminthes is Trematoda. The word trematoda is derived from two Greek words. The first word is stremata, which means having pores, and the second word is eidos, which means forms. The trematodes are ectoparasitic or endoparasitic forms. They are commonly called as flukes. The body shape of these trematodes is usually leaf-like and they are dorsoventrally flattened. The body wall is without epidermis and cilia. Their body is undivided and covered with a cuticle. प्लैटीहेल्मिन्थीज के दूसरे वर्ग का नाम ट्रेमेटोडा है। ट्रेमेटोडा शब्द का विकास ग्रीक भाषा के दो शब्दों के द्वारा हुआ है, जिसमें पहला शब्द ट्रेमेटा जिसका अर्थ होता है छिद्रित, दूसरा शब्द ईडोस यानी कि प्रकार, अर्थात ट्रेमेटोडा के जंतु ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि छिद्रित शरीर हो। ये बाह्य परजीवी या अंतः परजीवी होते हैं और सामान्यतया इनको फ्लूक्स कहा जाता है। इनका शरीर पत्ती के आकार का होता है और पृष्ठ तथा अधर सतह से चपटा होता है। इनकी बॉडी वॉल में एपिडर्मिस और सीलिया का अभाव होता है। इनका शरीर अखंडित होता है और क्यूटिकल के द्वारा आस्तरित रहता है। These animals are having well-developed suckers in them. Sometimes hooks are also present for attachment with the body of host. The digestive tract is incomplete, consisting of mouth, pharynx, and two forked or many branched intestine. Anus is absent in their digestive tract. Protonephridial secretory system is present, which consists of special type of the cells which are known as flame cells. Most of them are hermaphrodite individuals. In the body of these animals, single ovary and testes may be two or many testes can be seen. Life history might be simple or complicated. ट्रेमेटोडा के जंतुओं में चूषक उपस्थित होते हैं। कभी कभी इनके शरीर में हुक भी उपस्थित होते हैं। इन चूषकों के द्वारा और हुक्स के द्वारा ये परपोषी के शरीर में अपने आप को अटैच करने में सफल होते हैं। इनके पाचन तंत्र को हम देखें तो यहां भी पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, जो मुख, फेरिंग्स और शाखान्वित आंत्र के द्वारा पूरा होता है। इनमें भी एनस या गुदा का अभाव होता है। उत्सर्जन हेतु इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं और एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर उपस्थित होती है, जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ये जंतु सामान्यतया उभयलिंगी होते हैं, जिनके अंदर एक ओवरी और टेस्टिस की संख्या 2 अथवा 2 से अधिक हो सकती है। इनका जीवन चक्र साधारण या कभी-कभी जटिल प्रकार का भी हो सकता है। The reproductive system of
Trematodes is very well developed and cross-fertilization occurs during the process of reproduction. The development may be direct or indirect, and they might have a single host or more than one host in their life cycle. ट्रेमेटोडा के जंतु सामान्यतया इनका जो प्रजनन तंत्र है वो अत्यंत विकसित प्रकार का होता है। इनमें परनिषेचन पाया जाता है। परिवर्धन की जो प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दोनों प्रकार की हो सकती है तथा इनके जीवन चक्र को पूरा करने हेतु इन्हें एक या एक से अधिक मध्यस्थ पोषक की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण हैं डिप्लोजोम, पॉलीस्टोमा, फैसियोला and Cystosoma. The third class of phylum Platyhelminthes is Cestoda. The word Cestoda is derived from two Greek words in which the first word is kastos and the second word is eidos. The kastos means the girdle and eidos means form. The cestodes are endoparasites in the intestine of vertebrates. They are commonly called as tapeworms. Their body is without epidermis and cilia, but it is covered with cuticle. The body of cestodes is usually divided into few to many segments, and the segments of these animals are called as proglottids. Rarely they are undivided individuals. फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीज का तीसरा वर्ग सेस्टोडा है। सेस्टोडा के जो जीव हैं सामान्यतया वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी के आंत्र में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी होते हैं। इन्हें सामान्यतया फीताकृमि कहा जाता है। इनके शरीर पर एपिडर्मिस तथा सीलिया का अभाव होता है, किंतु इनका शरीर क्यूटिकल के द्वारा आस्तरित रहता है। इनका शरीर सामान्यतया खंडों में विभाजित होता है। खंडों की संख्या कम अथवा अधिक हो सकती है और इनके खंडों को प्रोग्लोटिड कहा जाता है। The anterior end of the body is called scolex, which is provided with adhesive structures like hooks and suckers, except in Cestodaria. Mouth and digestive tract totally absent in these animals because they are the endoparasites which are present in the intestine, and in the intestine of host digested food material is available, so they directly absorb this digested food material from the alimentary canal of the vertebrates or the host. Excretory system consists of protonephridia with typical terminal flame bulbs. The nervous system is usually having a pair of ganglia and two lateral longitudinal nerve cords. सेस्टोडा के जंतुओं के शरीर का जो अग्रस्त भाग होता है उसे स्कॉलिक्स कहा जाता है। स्कॉलिक्स पर एडहेशन के लिए हुक्स या सकर या दोनों उपस्थित होते हैं। इन जंतुओं के अंदर मुख और डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का टोटली अभाव होता है, क्योंकि ये जीव किसी वर्टिब्रेट के आंत्र के परजीवी हैं, अंतः परजीवी हैं और अपने परपोषी की आंत्र में उपस्थित पचे हुए भोजन को सीधे अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण से इन्हें मुख तथा डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उत्सर्जन हेतु इनके शरीर में प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जिनका जो अंतिम सिरा होता है उस पर फ्लेम बल्ब्स उपस्थित होते हैं या ज्वाला कोशिकाओं के उपस्थिति इनमें पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र इनका बहुत सिंपल प्रकार का होता है, जिसमें एक जोड़ी गैंग्लियन तथा दो लंबवत लंबाई में उपस्थित नर्व कॉर्ड्स उपस्थित होती हैं।
Each segment or the proglotid of cestodes contains one or two sets of complete hermaphroditic reproductive system. It means each segment is having male and female reproductive system in it. The life cycle of these animals is complicated, usually involves two or more hosts for completion of their life. These animals are usually hermaphrodite, in which self-fertilization takes place. The embryo also possesses hooks. सेस्ट्रोडा के जंतुओं के जो खंड होते हैं, प्रत्येक खंड में एक या दो जोड़ी पूरी तरह से नर तथा मादा जनन तंत्र के भाग पाए जाते हैं। ये जंतु उभयलिंगी हैं और प्रत्येक खंड में नर तथा मादा जननांग उपस्थित होते हैं। इनका जीवन चक्र जटिल प्रकार का होता है और इसे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने हेतु दो अथवा दो से अधिक पोषकों की पोषी की आवश्यकता होती है। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं तथा इन जंतुओं में क्योंकि अंतःपरजीवी हैं, निषेचन की प्रक्रिया करने में कठिनाई न हो, इस हेतु स्वनिषेचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इनका जीवन चक्र जटिल होने के कारण इनके एम्ब्रियो के अंदर भी हुक उपस्थित होते हैं। These are the few examples of class Cestoda: Amphelina, Phyllobothrium, Echinobothrium, Haplobothrium, Taenia solium and Echinococcus। यहाँ पर हम फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीस के वर्गीकरण को पूर्ण करते हैं, जिसे कि हमने 3 अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया था। थैंक यू।